नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. Today's program consists of verse number 25 to 27 of Surah Ibrahim. So as usual, according to the program's format, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses attentively, lovingly and silently, so that God's blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. Respected viewers, now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. تؤتي أكلها أكلها كل حين بإذن ربها حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم
लअल्लहुम यतज़क्करून यतज़क्करून वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्दि मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहु الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic scripture as well as convert it into the Roman script for those who are unfamiliar with Arabic alphabet, and this exercise is followed by Urdu and English translation also, so that keep watching this program for several benefits. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. In Roman, تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. वो दे रहा है अपना फल हर वक्त अपने रब के हुक्म से, और बयान फरमाता है अल्लाह ताला मिसालें लोगों के लिए ताकि वो उन्हें खूब ज़हन नशीन कर लें. Giving its fruit at every season by permission of its Lord. Allah coined the similitudes for mankind in order that they may reflect. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
In Roman, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار। और मिसाल नापाक कलमे की ऐसी है जैसे नापाक दरख्त हो जिसे उखाड़ लिया जाए जमीन के ऊपर से और उसे कुछ भी करार ना हो। In English, and the similitude of a bad saying is as a bad tree uprooted from upon the earth, possessing no stability. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. In Roman, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. साबित कदम रखता है अल्लाह ताला अहले ईमान को इस पुख्ता कौल की बरकत से दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी। In English, Allah confirmeth those who believe by a firm saying in the life of the world and in the hereafter. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. In Roman, وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. और भटका देता है अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को और करता है अल्लाह ताला जो चाहता है। In English, and Allah sendeth wrongdoers astray, and Allah doth what He will. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को समराइज़ करके आपकी खिदमत में हम एक्सप्लेन किया करते हैं। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 25 से 27 में क्या कहा जा रहा है, कौन सी टीचिंग्स, कौन सी नॉलेज हमें दी जा रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एग्जाम्पल्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तमसीलात के ज़रिए इंसान को समझाने की कोशिश करता है, उन्हें अक्ल अता फरमाता है, नसीहत अता फरमाता है, उन्हें तफक्कुर, ताक़ुल, तदब्बुर की दावत देता हुआ नज़र आ रहा है। पहले कुफ़ार के हालात को बताया गया और फिर उनके अज्र यानी उनको जो कुफ्र की वजह से जो अज़ाब दिया जाएगा उसकी एग्जाम्पल्स को बताया गया। फिर अहले ईमान जो जन्नत में रहेंगे उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए बताया गया। और अब यहाँ पर दरख्त के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि वो लोग जो ईमान लाए उनकी मिसाल उस खजूर के दरख्त की मानिंद है कि जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर
गहराई तक चली जाती है और फिर वो तना बनता है और फिर वो फल दिया करता है। लेकिन वो लोग जो कि कलमा तय्यबा नहीं पढ़ा करते, वो लोग जो ईमान नहीं लाते, उनकी मिसाल उस दरख्त की मानिंद है कि आंधियाँ आए जिसको जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दे। और आप जानते हैं कि जिस दरख्त की जड़ें ना हो, आहिस्ता आहिस्ता वो सूख जाया करता है। जड़ ही वो मंबा, मखरज और मादन है जिससे पूरे दरख्त को तवानाई और एनर्जी मिला करती है। चुनांचे वो जड़ ही नहीं रहेगी तो सिरे से पूरा दरख्त ही नहीं रहेगा। और फिर फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और यहाँ पर इस एग्जाम्पल के जरिए बताया जा रहा है मोमिन की मिसाल उस दरख्त की मानिद है कि जिसकी जड़ें ज़मीन में मजबूत भी है, वो फल भी देता है। तो इससे मुराद ये है कि इस दुनिया में भी मोमिन जो भी हुस्न अमल करता है वो बारगाह इलाही में मकबूल मंजूर हुआ करता है, इस दुनिया में भी उसको अज्र मिला करता है। और फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, और कल आखिरत की ज़िंदगी में वो जब जाएगा और इस नेक अमाल का कलिमा गो मुसलमान को जब नाम अमाल में अपने अज्र को देखेगा तो फिर हदीस में आता है कि वो ख्वाहिश करेगा कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, इस दुनिया में मांगी गई कोई भी दुआ मेरी मकबूल ना होती और सारी की सारी दुआओं का अज्र मुझे आज इसी मिज़ान आदल पर मैसर आ जाता। तो मालूम ये हुआ कि इस दुनिया में एक नेकी भी जब वो मिज़ान आदल पर पाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 गुना बढ़ा देगा। अल्लाह इंश्योर कर लिया करता है और उसको बढ़ाता चला जाता है। और वो लोग जो इस दुनिया में गलत अमाल करते रहे, उनका नाम अमाल कल खाली रह जाएगा। मुशरिकीन के साथ ऐसा ही कुछ होगा। और अहले ईमान पर मरने के बाद वफिल आखिरा, आखिरत की ज़िंदगी में युसब्बितुल्लाह, अल्लाह साबित कदम रखता है। इससे मुराद ये है कि जब कब्र में सवालात और जवाबात किए जाएंगे तो अल्लाह वहाँ पर भी उनको साबित कदम रखेगा। चुनांचे हदीस मुबारक में आता है कि फरिश्ते नकीरेन वहाँ पर आएंगे, मुनकर नकीर वहाँ पर आएंगे, मुर्दे को कब्र में उठाकर बिठा देंगे, फिर उनसे सवाल करेंगे कि तेरा दीन क्या है, तुझे किस दीन पर तो कायम है, तेरा रब कौन है, रब्बी अल्लाह। वो कहेगा कि अल्लाह मेरा रब है। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, वो कहेगा दीन यानी इस्लाम। फिर कहा जाएगा मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हादर रजुल, कि इस नेक मर्द यानी मेरे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ तू क्या कहता रहा है। अब अजीब व गरीब सवाल है। पहले जो सवाल किए जा रहे थे उसका जवाब हाजिर में था और यहाँ पर पास परफेक्ट में किया जा रहा है। माजी इस्तिमरारी में दुनिया में तू इस नेक मर्द के मुताल्लिक़ क्या कहता रहा है। बड़ा अजीब व गरीब सवाल है। वो ये जो लोग ये कहते रहे कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल है जो खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तो यकीनन उसकी ज़बान से वही जारी होगा। और जो इस दुनिया में नबी की गुस्ताखी करता रहा, बेअदबी करता रहा, तो वहाँ पर उसकी ज़बान से वही जारी और सारी होगा। अगर वो इस मरहले पर सवाल का सही जवाब दे गया तो फिर उसकी कब्र को बक़ाए नूर बना दिया जाएगा, बक़ाए नूर बनाकर रोशन कर दिया जाएगा। और अगर कोई ये सवाल का जवाब सही नहीं दे सका तो फिर हदीस में आता है कि दोनों कानों की लो में उसको हथौड़ा मारा जाएगा, जिससे वो चीख मारेगा और उसे तकलीफ होगी। और फिर उसकी चीख को सारे के सारे जानवर भी सुनते हैं, सिवाय इंसानों को तमाम मखलूक़ात सुना करती है। इतनी अजीम उसकी और इतनी ज़ोरदार उसकी चीख हुआ करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया की ज़िंदगी में, बरज़ख यानी कब्र की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में हम सब को साबित कदम रहे। और ये दुआ मांगते हैं कि ज़िंदगी के हर लम्हे में मोहब्बत मुस्तफ़ा, कब्र के अंधेरों में दीदार मुस्तफ़ा, हश्र की कुल्फ़तों में शफ़ाअत मुस्तफ़ा, हौज़ कौसर पर जामे मुस्तफ़ा, पुले सिरात पर दुआए मुस्तफ़ा और जन्नत की नेमतों में रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को क़ुर्ब व रिफ़ाक़त मुस्तफ़ा नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।